Hello everyone. Welcome today our session on stay relevant and stay competitive. Today we have a guest Nilofer. She had a 4 years of career gap and she had upskill with robotic process automation and restarted her career into IT industry. So let's welcome today and understand how she had shifted her career into IT and AI space after 4 years of career gap. Hi, sir. Hi, I'm Nilofer. I'm basically from Satara. I have done my computer engineering from Satara in 2013 in computer science, and I got married in 2014. After 1 year of my gap, I decided to go my masters. Then I took admission of master of engineering in computer networking. Then in 2017, I have completed my Master of Engineering in Computer Networking. Then in 2019, I blessed with a child. So I'm not, that time I was not able to start with my career. And once again, I decided to restart my career. Then I Googled about initial technology, latest technologies and ongoing and latest technologies like RPA, AI. Then after discussing with my few close friends, they suggest me to go with RPA because of my huge gap. I was not touch with my studies, so I decided to go with RPA. So I joined in the month of August, um, Emergent Tech Institute. Then I completed my course by September. Meanwhile, I got interview calls. Okay. Then I got selected with I got selected in Yash Technology in month of October. After 1 month of my completion of my course, I got selected in October month in Yash Technology. So it is a golden opportunity for me. It's very common to people used to ask me like I have 4 years of gap, 5 years of gap, and few people having 10 years of gap, right? So this is very common and very interesting questions like how someone can like restart again with after this much of career gap, maybe 4 years, 5 years. तो आपका क्या सजेशन है, मतलब आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा इतने करियर गैप के बाद आपका करियर में आना फिर से? मेरा भी यही मतलब यही कंफ्यूजन था कि इतने 4 years 5 years गैप के बाद अभी मुझे मतलब कैसे मैं स्टार्ट करूंगी, यही सब कंफ्यूजन था. Right. तो मैंने इसीलिए फिर मैंने मतलब फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अगर सर्टिफिकेशन करेंगे, कोर्सेज करेंगे तो उसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा है. तो फिर मैंने आपके साथ मुझे यही सजेस्ट किया कि अभी इतने साल का गैप है तो स्टडी में अपने स्टडी में भी टच में नहीं है, कोडिंग के टच में नहीं है, तो फिर आरपीए इज अ बेस्ट टू स्टार्ट विथ टू फ्रेश स्टार्ट. तो मैंने डिसाइड किया कि आरपीए यूआई पाथ में अभी कर लेते हैं. Yeah, my question is RPA a good to start for a new career? Like yes. After this much of career break. Yes, after career break also. And अगर आप दूसरे फील्ड से हो, अगर अभी यश में मैंने ज्वाइन किया तब वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, केमिस्ट्री बैकग्राउंड के भी लोग थे जिनका मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कोई मतलब बैकग्राउंड नहीं था कंप्यूटर रिलेटेड, तो उन्होंने भी ज्वाइन किया है, वो भी आरपीए कर रहे हैं. तो आप किसी भी फील्ड से हो तो आप आरपीए इज अ बेस्ट टू स्टार्ट विथ न्यू करियर. इफ आपको एमएनसी में जॉब करना है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो फिर आप आरपीए के साथ इजीली जा सकते हो. ओके, सो एक और क्वेश्चन मेरा आता है कि लाइक मैं आरपीए में तो जा सकता हूँ, सो इज इट पॉसिबल टू गेट जॉब जस्ट आफ्टर डूइंग एन आरपीए कोर्स? नहीं, मतलब आरपीए कोर्स जस्ट मींस प्रैक्टिस भी जरूरी है. बेस ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करने वाला अगर कोई हो, लाइक मैंने इमर्जेंट टेक को चुना तो वो मेरा फिर बेस्ट डिसीजन था. ऐसे बहुत सारे कोर्स मतलब इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन भी कोर्सेस है, लेकिन अगर बेस्ट गाइड करने वाला हो, बेस्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हो
तो फिर आपके पॉसिबल है कि आप मूव ऑन कर सकते हो। राइट राइट राइट। तो आपको कैसे मतलब इमर्जेंट टेक की ट्रेनिंग में आपको क्या हेल्प मिला, लाइक हाउ यू हैव स्टार्टेड, बिकॉज यू वर ऑल टुगेदर न्यू इनटू द आईटी like maybe RPA industry, right? So you were not aware about how the tool work and the technology work. So how we at Emergent Tech would help you to learn that training and get into the job. हाँ, इमर्जर टेक इंस्टीट्यूट से मुझे बहुत सारा मतलब हेल्प मिला, गाइड मिला। तो मतलब असाइनमेंट जो मिला वो मैं प्रॉपरली मतलब तभी करते गई। और प्रैक्टिस मेन तो है कि प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अभी तो आप स्टडी के भी टच में नहीं हो और ना ही मैंने मतलब जॉब एक्सपीरियंस था मुझे। इसके लिए मैंने प्रैक्टिस किया बहुत। जो सर बोल रहे थे कि ये आपको इतने दिन में करना है, तो वो सब मैं करती गई, तो मुझे फिर वो नॉलेज आता गया। और Good. So that's great to hear his story. I think it's very inspiring. So as a 4 year of career break, maybe it was very difficult. I think दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि पता नहीं मैं करूंगी या मतलब मैं कोर्स करने के बाद मेरी जॉब लगेगी नहीं जाएगी, आई एम इन्वेस्टिंग माय टाइम एंड मनी एंड क्या होगा, मेरा करियर में जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। मान लो अगर किसी का करियर गैप है, कोई ना कोई जेन्युइन रीजन होगा जिसकी वजह से उनका करियर गैप है, तो आपका क्या सजेशन होगा कि मतलब अगर इन केस ऑफ लेडीज की अगर हम बात करें तो मोस्टली कभी शादी या कुछ और सारी चीजें आती है जिसकी वजह से उनका करियर गैप या ब्रेक होता है, तो आपका क्या सजेशन है, उनको क्या कैसे अपनी रेडीनेस करनी चाहिए और कैसा अपना एटीट्यूड रखना चाहिए? वो ही सब क्वेश्चन मेरे माइंड में भी थे कि अब इतना मैं स्टडीज के टच में भी नहीं हूँ, तो मैं स्टार्ट कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे बेबी भी है, तो वो उसके साथ वो मैनेज होगा कि नहीं, घर और बेबी सब ऑफिस। लेकिन हो गया, फिर वो पे प्रैक्टिस किया मैंने, इंटरव्यू क्रैक किया, तो वो फिर हो जाता है। अगर ऐसे नहीं कि सोचते ही बैठो कि नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे करोगे तो फिर नहीं होगा। मैंने फिर स्टार्ट किया, तो फिर वो होते गया, मतलब इंटरव्यू भी होते गया। फिर ऑफिस अभी वर्क फ्रॉम होम है, तो अभी मुझे इजीली मैनेज हो रहा है ऑफिस एंड वर्क। अभी कंपनीज में लेडीज का तो गैप कंसीडर करते हैं कि ऐसे ज्यादा कोई पूछता नहीं क्या गैप क्यों हो गया है। तो मुझे भी वही बोला गया कि लेडीज का गैप तो होता ही है, वो कंसीडर करते ही है, तो मतलब अगेन स्टार्ट करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। राइट, तो ग्रेट नीलू। I think it's great inside the people, they have some career gap and they are looking into to learn new technology and they want to move into some IT industry. So RP could be one of the choice they can learn and they can switch their career. Thank you, Nilofer, to joining